बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 वेक्टर डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन एंड द फर्स्ट टॉपिक इज स्केलर एंड वेक्टर फंक्शंस ऑफ वन वेरिएबल। बिफोर डिफाइनिंग स्केलर फंक्शन एंड वेक्टर फंक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द फंक्शन? Remember it, function is a rule which assign each value of first set to a unique value of other set. मीन्स जैसे मैं आपको बताती हूँ, मैंने एक पेज पे किया है. सपोज यू हैव दीज टू सेट्स and according to the definition of the function, each value of this set, if each value of this set assign a unique value of the second set, then this is a function. लेकिन इसमें आप देखें, वन जो है वो यूनिक इमेज ए को असाइन कर रहा है, इसके अलावा किसी को नहीं कर रहा. मीन्स वन यूनिक इमेज को असाइन कर रहा है, टू कर रहा है यूनिक इमेज को, यस बी को कर रहा है और किसी को नहीं कर रहा. थ्री कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, तो कंडीशन फुलफिल हो रही है. लेकिन कंडीशन की एक बात ये भी है कि फंक्शन इज अ रूल विच असाइन ईच वैल्यू ऑफ फर्स्ट सेट, लेकिन ये फर्स्ट सेट में 4 असाइन नहीं कर रहा. सो मीन्स दिस इज नॉट द फंक्शन. नाउ मस्ट असाइन 4 आल्सो. सो टेक द सेकेंड वन. इसमें देखें 1 असाइन कर रहा है ए को, इसके अलावा किसी को नहीं कर रहा. सो मीन्स ए हैज़ अ यूनिक इमेज. 2 असाइन कर रहा है बी को, इसके अलावा किसी को नहीं कर रहा. 2 हैज़ अ यूनिक इमेज बी. 3 हैज़ अ यूनिक इमेज बी. 3 का बी के अलावा कोई इमेज नहीं है. 4 हैज़ अ यूनिक इमेज सी. सो मीन्स दिस इज अ फंक्शन. अब आपके जहन में आएगा ये तो 2 बच गए, डी और ई. भाई सेकेंड सेट में कुछ भी बच सकता है, because according to the definition each value of first set assigned to the unique value of the other. So this is a function because this fulfill the definition of the function. Now in the third example, say each value of first set, say 1 assign a unique image, 2 assign b unique image, 3 assign b and c not unique image. So means this is not the function. Fulfill first each value of this set assigned, but 3 assign not unique image. So means this is not the function. So this is the definition of the function. After that, now we discuss the scalar function and vector function. Because you know that scalar function is a function, as function is a rule which assign each value of first set to a unique value of other set. Similarly, scalar function is a function which assign each scalar value of first set to a unique scalar value of the second set. Means क्या कहना चाह रही हूँ मैं कि एक पहले सेट की जो स्केलर वैल्यू अगर किसी यूनिक स्केलर को जाके असाइन करे, then that is the function. So scalar function is a function. Scalar function is a function which assign each scalar to a unique scalar. And similarly, vector function is a function which assign each vector value to the unique vector. So this is the scalar function and vector function. The minor difference between scalar and vector function. In the scalar function you can write as phi of t, but in the vector function you can write symbol arrow on the head. This is the scalar and vector function. Now the example number 1 is, example 1 is if a of t is equal to given as, then find the value of that vector a at 0 and that vector a at pi. How can you find? First write the vector function as, then substitute the value of t0 here. When you substitute 0 here, then you get some value. That is the value of vector a at point 0. At t is 0. And similarly you can find a of pi. So this example is very simple example, you can see it. Okay, now after that, now we discuss domain and range. Beta, domain, what is domain? The set of all values at which function defined is called domain, and the output, and you get some output, that output is called range. So the definition of this domain and range is the set of all possible value of t for which a is defined is called the domain of that vector function, and the set of all corresponding vectors is called the range of vector a. After that, discuss example number 2. Example number 2 is find the domain of the vector function, this vector function,
and this vector function is vector a is equal to 1 by ti plus अंडर रूट टी प्लस 1j प्लस साइन ऑफ टी के. अब आप बेटा इसमें देखो 1/t इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ टी एक्सेप्ट t0. t0 पे ये डिफाइन नहीं है, और ये t0 पे इसलिए डिफाइन हमने, ये t0 पे डिफाइन है, लेकिन ये जो t0 जो है ना ये t-1 के लिए डिफाइन नहीं है, ये t-2 के लिए डिफाइन नहीं है. सो मीन्स इट इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ऑल t ग्रेटर देन इक्वल -1 एंड साइन t इज़ डिफाइंड फॉर ऑल. तो इसका डोमेन का सेट क्या बनेगा, डोमेन निकालना है. ऐसी डोमेन बनेगी जिसमें t0 ना हो और वो t की वैल्यूज़ हो जो ग्रेटर देन इक्वल -1 हो. ये देखें डोमेन लिखी हुई, ये देखें डोमेन ऑफ आ वेक्टर फंक्शन इज द सेट d इज इक्वल टू ऑल t when t is greater than equal -1 and t is not equal to 0. Remember it. ठीक है, यहाँ थोड़ा सा इक्वल मिसप्रिंट है, इसको ख़त्म कर लीजिएगा, आपकी बुक में नहीं होगा. t is not equal to 0. Now what is limit and continuity of the vector function? लिमिट की डेफिनेशन वैसे तो आपने पढ़ी हुई है. अब हम देखते हैं कि लिमिट क्या होती है. मैं आपको पहले बड़े सिंपल वे में लिमिट डिफाइन करती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. जैसे ये देखिए, एक आपके पास वेक्टर फंक्शन है a ऑफ t, ठीक है. अब कोई वैल्यू है t अप्रोच करे अगर a को, तो वो वेक्टर फंक्शन भी अप्रोच करेगा किसी खास a को. व्हेन t अप्रोच टू a देन वेक्टर फंक्शन आल्सो अप्रोचेस टू सम स्पेसिफिक नंबर, सम डेफिनेट नंबर l. then you can say that capital L is the limit of vector function a. जैसे जैसे t जो है a के पास जाता है, t अप्रोच करता है a को, मीन जैसे जैसे ये t उसके पास देखे, जब t यहाँ आ गया तो ये डिस्टेंस बहुत कम हो गया, तो इसी तरह वेक्टर फंक्शन भी आगे जाता जाएगा l के पास, और जहाँ पे जाके इसका डिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा. तो मीन्स when t approaches to some definite number a, then vector a also approaches to some definite number l, then you can say that function has a limit. तो इस तरह लिखेंगे वेक्टर फंक्शन लिमिट t अप्रोचेस टू, से t नोट है, a की जगह t नोट है, देन यू गेट l. अब इनको मॉडुलस फॉर्म में ऐसे लिखेंगे कि जब यहाँ पे देखो, जब t स्मॉल t और a में बहुत कम डिस्टेंस रह जाएगा, तो भाई इस वेक्टर फंक्शन में और l में भी बहुत कम डिस्टेंस रह जाएगा. तो ये यही शो करा रहा है व्हेन वेक्टर फंक्शन एंड लिमिटिंग वैल्यू has very close, its distance between these two is very small, epsilon is very very small positive number, and modulus form you can write the limit definition as. यहाँ पर अच्छी तरह से समझ लेंगे इसको, लिमिट की डेफिनेशन को, क्योंकि मैंने आपको ये फिगर से बताया है कि जैसे जैसे t a के पास जाता है, जैसे जैसे t और a के दरमियान डिस्टेंस कम होता जाता है, वैसे वैसे वेक्टर और l के दरमियान भी कम हो जाता है. सिम्बॉलिकली ऐसे लिखेंगे, मॉडुलस फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे. ठीक है, ये हो गई लिमिट की डेफिनेशन. अब आप देखो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा हुआ है लेट अ वेक्टर फंक्शन बी डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ t इन सम नेबरहुड अबाउट द पॉइंट वेयर यू वांट टू फाइंड द लिमिट. मतलब वेक्टर फंक्शन सारी वैल्यूज़ पे डिफाइन हो उस पॉइंट के नेबरहुड में जहां आप, जिस पॉइंट पे आपने लिमिट फाइंड करनी है. अब आपका क्वेश्चन आ सकता है यहाँ कि उस पॉइंट पे डिफाइन ना हो, उसके नेबरहुड में डिफाइन हो. बिल्कुल, उस पॉइंट पे डिफाइन हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन उसके नेबरहुड में ज़रूर डिफाइन हो. तो फिर वो कैपिटल एल देखें, उसने वही सिंबल यूज़ की हुई है और कहा है कि वो उसकी लिमिट होगी. और ये डेफिनेशंस दो लिखी हुई हैं, एक मॉडुलस फॉर्म में और एक ये सिंबॉलिक फॉर्म में जो मैंने आपको लिखा है. ये आपने डेफिनेशन पढ़नी है, इंशाल्लाह आपको ये पढ़ने से बिल्कुल सही समझ आ जाएगी. बाकी हम ऑनलाइन भी डिस्कशन कर लेंगे इस वीडियो लेक्चर के बाद. ठीक है, अब देखें, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब आपके पास एक वेक्टर फंक्शन होता है तो ये कंपोनेंट फॉर्म में होता है a1i a2j a3k. तो लिमिट भी जाहिर है आपके पास कांस्टेंट है कोई, तो उसे भी l1i l2j l3k लिख सकते हैं. तो आप याद रखिएगा, जब एक वेक्टर फंक्शन आपके पास गिवन है, उस पर लिमिट लगाते हैं, इसका मतलब है कि आप उसके सारे कंपोनेंट्स पे भी लिमिट लगाएंगे. ठीक है, ये बाद में डिस्कस करना है हमने, वहाँ आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा. अब पहले आप एग्जांपल देखें, एग्जांपल नंबर 3. एग्जांपल नंबर 3 ये है कि अगर आपको एक वेक्टर फंक्शन दिया हुआ है, वो ये कह रहा है इसकी लिमिट फाइंड करें एट π/4. तो आप क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, वेक्टर फंक्शन लें, t लें π/4, इसमें पुट करें, t π/4 पे क्या होता है 1/√2 आयोटा, प्लस जब इसमें sin t में पुट करेंगे वो भी 1/√2 t √2
और जब टी में पुट करेंगे तो पाई बाई 2, तो ये आंसर आ जाएगा आपका। ये आप याद रखिएगा जब भी लिमिट फाइंड करते हैं तो लिमिट फाइंड करते हुए फंक्शन वेक्टर फंक्शन को आपने सिंप्लीफाई कर लेना है, उसे सिंप्लीफाई करके फाइंड करते हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इन प्रॉपर्टीज़ का प्रूव नहीं हम यहाँ कर रहे, जस्ट अंडरस्टैंड और रिमेंबर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द वेक्टर फंक्शन। जब दो वेक्टर प्लस हो रहे हैं, लिमिट लगानी है, दोनों पे सेपरेट सेपरेट लिमिट लगा दो। माइनस हो रहे हैं सिमिलरली, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों पे लगेगी। क्रॉस प्रोडक्ट है तब भी लगेगी, डॉट प्रोडक्ट तब भी लगेगी। मतलब ये सारी प्रॉपर्टीज़ इसकी यहाँ दी हुई हैं, इसको आपने पढ़ लेना है। इसके बाद है कंटिन्यूटी एट ऑफ अ वेक्टर फंक्शन। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिमिट एंड कंटिन्यूटी। लिमिट में आपको मैंने बताया था कि जब ये डेफिनेशन है लिमिट की कि व्हेन t अप्रोचेस टू t नॉट देन वेक्टर फंक्शन अप्रोचेस टू सम डेफिनेट नंबर l। और मैंने आपको कहा था कि लिमिट के लिए इस पॉइंट पर डिफाइन होना ज़रूरी नहीं है, उस पॉइंट के इर्द गिर्द फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। इन द नेबर फंक्शन मस्ट बी डिफाइंड इन द नेबरहुड ऑफ दैट फंक्शन दैट वेक्टर। सॉरी, वो जो नेबरहुड में डिफाइन होना चाहिए वो वेक्टर फंक्शन जो है वो फंक्शन उस पॉइंट के नेबरहुड में डिफाइन होना चाहिए। कंटिन्यूटी में क्या है, लिमिट में सिर्फ ये फ़र्क है कि इस पॉइंट के नेबरहुड में डिफाइन होना चाहिए और कंटिन्यूटी में इस पॉइंट पर भी डिफाइन होना चाहिए, मस्ट डिफाइन एट दिस पॉइंट। तो आप कहेंगे कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, जैसे देखो ये एक मैंने फंक्शन लिया, इस फंक्शन में ये मैंने फंक्शन ले लिया, इसमें लिमिट लगाई, लिमिट लगानी है तो लिमिट लगाने के लिए पहले फंक्शन सिंप्लीफाई करते हैं। अब अगर आप इसमें वैल्यू लगा दें, डायरेक्ट 1 लगा दें, तो ये अनडिफाइन हो जाएगा, क्योंकि देखो 1 - 1 0 हो जाएगा। तो जब ये अनडिफाइन हो जाएगा तो आपका तो ये अनडिफाइन आ गया, मतलब ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है 1 पे। लेकिन 1 पे लिमिट फाइंड हो सकती है, क्योंकि ये देखो 1 पे जब लिमिट फाइंड की तो मैंने इसको सिंप्लीफाई करके काट के तो ये आपके सामने ले आई। ठीक है, जब ये मैं आपके सामने ले आई तो लिमिट डिफाइंड हो गई, मतलब लिमिट के लिए फंक्शन का उस पॉइंट पे डिफाइंड होना ज़रूरी नहीं है, जबकि कंटिन्यूटी के लिए उस फंक्शन का उस पॉइंट पर डिफाइंड होना ज़रूरी है। जैसे चलें अब कंटिन्यूटी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ, अभी आप यहीं पे इसमें इसको स्टॉप कर रही हैं।